Welcome back, ladies and gentlemen, listening to Radio Azad 1110 AM, Voice of the People. मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज सईद और रहेंगे आपके साथ सुबह 10 बजे तक. प्रोग्राम है उड़न खटोला और हमारे स्टूडियो का नंबर है 9725019390. आज ट्यूसडे के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट the special care that is needed for special needs children. Yes, they are very very special, लेकिन इन special needs के बच्चों के लिए एक खास तरह का केयर भी ज़रूरी है. एंड इससे पहले कि हम कुछ बात करें और आप लोगों से पूछें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, एंड स्पेशली फ्रॉम पेरेंट्स who have special needs kids, we'd like for them to come and share their experience of it is very very challenging. I've had some experience with that also because my sister has a special needs child as well. तो उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन हमने दावत दी है एक स्पेशलिस्ट को जनाब, ऑल द वे फ्रॉम दुबई. यस, वैसे तो उनकी रहाइश है कुवैत में, लेकिन आजकल दुबई पहुंची हुई हैं. वन ऑफ माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, डियरेस्ट फ्रेंड्स, साइमा इज on the line all the way from Dubai, and ये बात करेंगी. She's an expert on the subject. Let's talk to her and welcome her. Assalamu alaikum Saima. वालेकुम अस्सलाम अरूज, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह. First of all, welcome the very first time to Radio Azad. Thank you so much. Thank you for inviting me on the show. Thanks a lot. And it's a pleasure speaking to one of my dearest friends. साइमा, मुझे ये बताइए, आज जो टॉपिक हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट है. हम चाहेंगे पहले तो कि आप हमारे लिसनर्स को अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन दे दें, और उसके बाद फिर आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे. जरूर अरूज, मेरा कुछ कोई लंबा चौड़ा तो नहीं. I'll just briefly tell about my qualifications. I started my career or degree in applied psychology, and I did the masters from Pakistan. And then when I relocated to States, I spent a year working I was going through a training as a speech therapist. और फिर उसके बाद जब मैं कुवैत गई तो I started my career in special needs. I worked as a psychologist in a special needs school, assessing the children, developing their IEPs, and then I did my degree in special education from State University of New York, which was an international program hosted in Kuwait. और आज मुझे 7 साल हो गए हैं working for special needs, and I must say I never planned to be in the field of special needs, but I must admit that I enjoy doing that work. Wonderful. और I realize, Saima, that this is a bit of challenging work. Much more than a normal regular बच्चे को पढ़ाने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप एक स्पेशल नीड्स के बच्चे को पढ़ाएं, उसको ट्रेनिंग दें. आप हमें थोड़ा सा एक तो बताइए ये कि स्पेशल नीड्स की जो है वो कौन से बच्चे जो हैं वो स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में आते हैं? Anuj, I would like to explain something. जो special needs है, it's a huge umbrella. ठीक है, और उसमें कुछ जो my experience, what I have seen is कि there are some misconceptions attached with special needs. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो they are absolutely, जो हम cognitive ability कहते हैं या intellectual ability है, that is perfectly fine, and they will be having some difficulties in certain areas like math, language arts, जिसको हम dyslexia, dyscalculia, dysgraphia बोलते हैं, वो होती हैं learning disabilities. इन learning disabilities में जो बच्चे की intellectual ability है, that is average to above average, and same goes for जिसको हम attention deficit hyperactivity disorder या attention deficit disorder कहते हैं. तो वो बच्चे जो हैं, they are perfectly capable of pursuing an academic program. All they need is a structured environment. IEP, जो कि special education में professionals हैं, they are very much familiar with that concept. IEP is individual education plan, जो उनके सारे goals लिखता है कि बच्चे के current level of performance क्या है, क्या goals implement मतलब जो devise किया जाता है for throughout the year, और क्या क्या goals जो हैं वो एम किए जाएंगे थ्रू आउट द ईयर्स बच्चे के लिए. लेकिन इट इज ऑल डन, द प्लानिंग इज डन आफ्टर अ डिटेल्ड असेसमेंट. अब जो ये बच्चे हैं, दे आर परफेक्टली केपेबल ऑफ परसुइंग अ करियर
और अब जो है बहुत से schools in North America and I would say in Middle East as well are providing an academic program, and there are universities which are providing bachelor's level degrees and careers for these children. So these children are very much capable of pursuing a career, earning an independent living, and that's absolutely उनकी intellectual ability is very much fine. उनके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है. और दूसरी तरफ पे जो हमारे साथ कुछ चैलेंजेस आती हैं जो हम स्पेशल नीड्स में देखते हैं, there are children who might be having like social deficits जो ऑटिज्म आ जाता है, या कुछ और सिंड्रोम्स हैं जिसमें आपकी जो बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी है इट इज बिलो एवरेज. तो उन बच्चों के लिए जो है बेसिकली दे आर गिवन एन एकेडमिक प्रोग्राम बट देयर मेजर कंसंट्रेशन इज ऑन डेली लिविंग स्किल्स, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल ये होता है कि दे कैन बी इंडिपेंडेंट सर्वाइवर इन द कम्युनिटी. ओके, राइट. सो बेसिकली जो है वो आपने एक तो फर्स्ट एक्सप्लेन किया लर्निंग डिसेबिलिटीज जो बच्चों की होती हैं उनके जो है वो मतलब एक एक स्पेशल एनवायरनमेंट दें तो दे कैन फ्लरिश जस्ट लाइक एनी अदर किड कैन. लेकिन एनी अदर चिल्ड्रन, अच्छा बिल्कुल. और उनके साथ ये होता है कि जब आप स्पेशल एड के जो बच्चे हैं उनमें बड़ा एक जिस कहते हैं ना एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम उनके साथ काम करती है, जिसमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन्वॉल्व है, स्पीच थेरेपिस्ट इन्वॉल्व है, एक साइकोलॉजिस्ट स्लैश काउंसलर इन्वॉल्व है, स्पेशल एड टीचर इन्वॉल्व है. इन नॉर्थ अमेरिका का सेटअप इज डिफरेंट क्योंकि अब तो ये मतलब इंटीग्रेशन इंक्लूजन है कि वो मेन स्ट्रीम में ये ऑफर कर रहे हैं. मिडिल ईस्ट की जो इस वक्त स्कूल्स हैं स्पेशली इन कुवैत, दे आर डूइंग लाइक दे हैव स्पेशल एड स्कूल्स एंड वो उन बच्चों को बड़ा इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दे रहे हैं. वो अभी जो है इंक्लूजन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका इंक्लूजन इज डेफिनेटली देयर, वो मेन स्ट्रीम उनको प्रोग्राम्स दे रहा है. लेकिन एक स्पेशल एड बच्चा जो है वो डेफिनेटली एक बड़े ठीक ठाक जो जिसको मैंने इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान कहा है उससे जो है वो जरूर उसके लिए फायदेमंद होता है. एंड इट इज ओनली डिवाइज्ड आफ्टर अ डिटेल्ड असेसमेंट, और वो असेसमेंट जो होती है वो एक साइकोलॉजिस्ट की तरफ से आती है जिसमें वो बताया जाता है कि कौन से एरियाज ऑफ चैलेंजेस हैं, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये जो एक टीम है ये पूरी असेस करके बच्चे की जो स्ट्रेंथ्स हैं या जो पॉइंट्स हैं जो डेफिसिट्स हैं उनको वो लिखते हैं, फिर अकॉर्डिंगली जो टीचर्स हैं दे डिलीवर द प्लान. ठीक है. व्हाट अबाउट जैसे कि आपने कहा कि जिनको डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं या सोशल जो उनके होते हैं जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं या फिर डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, व्हाट अबाउट देम, हाउ डू वी गो अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दीज स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन? एक तो जो घर में अगर आप घर की तरफ से बात करें जो पेरेंट्स के लिए, तो आई वुड से कि रूटीन एट होम, ये जो बच्चे हैं जस्ट लाइक जो एडल्ट्स लाइक वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम रूटीन, कि उनका एक हाईली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट हो और उनको पता हो कि मेरी ये सब चीजें हैं, टाइमिंग्स हैं, मेरी बिलोंगिंग्स हैं, ये बहुत स्ट्रक्चर इन अ वेरी स्ट्रक्चरली मैनर ये यहाँ पर ही है, मुझे ये करना है. और एक इनको जिनको हम कहते हैं विजुअल क्यूज देना कि हमने हर चीज लेबल करके रखी हुई है बच्चों, क्योंकि ये बच्चे कई दफा जैसे जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे जो होते हैं उनमें ये होता है सम आर हाई फंक्शनिंग जिसको हम एस्पर्गर्स बोलते हैं, एंड सम हैव सिवियर सोशल डेफिसिट्स और उनकी स्पीच डिले भी होती है. तो उनको ना सिर्फ हम इंटेंसिव स्पीच थेरेपी देते हैं, एक होता है पिक्चर एक्सचेंज सिस्टम एज वेल. वो ये होता है कि उन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना हो, उनकी जो नीड है दे डू इट थ्रू पिक्चर एक्सचेंज सिस्टम. और जो डेवलपमेंटली एक्सट्रीम डेवलपमेंटल और ऑटिज्म एक प्रोग्राम आता है जिसको हम कहते हैं ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस. दे बेनिफिट फ्रॉम दैट. इट इज अ वेरी इंटेंस थेरेप्यूटिकल प्रोग्राम जिनमें हम इन बच्चों को डेली लिविंग स्किल्स सिखाते हैं, कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, इवन टू दैट पॉइंट पॉइंटिंग सिखाते हैं कि हाउ टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट, हाउ टू सोशली इंटरैक्ट. आप रेसिप्रोकेशन होती है किसी गेम में. और घर में यही स्किल्स जो कैरी ओवर करने के लिए ये हैं, एक तो ये है कि वालिदैन को बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन बच्चों के साथ, इनकी एक क्लियर कट रूटीन रखनी है. दूसरी बात ये है कि आप
के साथ, जैसे जो बच्चे सोशली और डेवलपमेंटली डिले हैं, उनको ये नहीं कि ये स्किल्स कभी आएंगी नहीं. वी हैव टू बी वेरी पेशेंट इन टीचिंग दोज स्किल्स एंड मेक श्योर दैट दोज स्किल्स आर टॉट इन एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेटिंग एंड देन ट्रांसफर्ड इन जनरलाइज. क्योंकि आप 101 पहले उनको सिखाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जनरल आपकी जो एनवायरमेंट है, लाइक इन स्कूल एनवायरमेंट, और आप कहीं बाहर किसी से मिलने जा रहे हो या यू गोइंग टेकिंग देम आउट टू अ मॉल, तब आप जाकर उनको वो ट्रांसफर कर सकते हो. लेकिन जो उनकी बेसिक टीचिंग है वो 101 पे शुरू होती है. अच्छा, yeah, I realize it is a very very general question that I'm asking, and this is such something which is needs specialized attention, and of course like you said, there's a very very wide spectrum, जो कि developmental disabilities होती हैं, and then just regular learning disabilities होती हैं, वो बहुत अलग होती हैं. लेकिन right now if you would just give us a general idea of एक माँ बाप को पता चला है कि जी उनका बच्चा जो है वो उसको डाउन सिंड्रोम है, ठीक है ना. नाउ दिस इज देयर फर्स्ट चाइल्ड, दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट, नाउ दे ट्राइंग टू ब्रिंग अप द चाइल्ड. इनिशियली जो है इनिशियल फ्यू इयर्स में जो है व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे विल फेस, एंड देन लेटर ऑन आपने थोड़ा सा बताया कि जैसे कि उनको एक स्पेशल नीड स्कूल में डालते हैं तो फिर टीचर से 1-on-1 होता है, एंड देन पेरेंट्स के साथ भी जितना टाइम वो लेते हैं स्कूल में उतना या उससे ज्यादा फिर पेरेंट्स को भी देना पड़ता है उनको एट होम. बिल्कुल. और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये पूरी फैमिली के लिए जो है इट इज अ चैलेंज. बल्कि जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो ये है कि हमें सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, हमें माँ बाप के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू रियलाइज फॉर द पेरेंट्स गो थ्रू. उनके साथ ये है कि हर कोई आजकल की दुनिया में इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड वी वांट एवरीथिंग बेस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन. तो उसमें ये है कि माँ बाप, some parents do realize they are willing to work. कुछ माँ बाप जो होते हैं it takes them a while and that's fine. लेकिन educate your family, educate yourself about what special challenges my child has, how it can be dealt, and there are professionals in community, in school. Go have a conversation with them. उसमें ये है कि माँ बाप को भी उतनी ही सपोर्ट चाहिए जितनी बच्चे को चाहिए. ठीक है, अगर वो माँ बाप हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है तो उनके लिए बेस्ट ये है कि द प्रोफेशनल्स दे हैव इन द कम्युनिटी और द स्कूल ऑफर, ईच स्पेशल स्कूल और ईच रेगुलर स्कूल डज ऑफर काउंसलिंग सर्विसेज. अगर वो आप काउंसलर के पास जाते हो, वो आपको ऐसे लोगों के पास रिफर कर सकता है हु आर प्रोफेशनल इन दिस फील्ड. दे विल नॉट only educate but they will give you further information. Ooh, I think we lost you, Saima. Chale, we'll try and reconnect to her. First of all, thank you so much. Inshallah, we'll try and get her back after a short while also, and then we'll hear from other parents also. This was one of my very, very dear friends, and she's sitting with my two other best friends in Dubai right now. And big shout out and lots of love and hugs and kisses going to all of them. I wish I was there with you also right now. But abhi jo hai, aap ऐसा करिए कि हमसे बस बात करके गुजारा कर लीजिए, जैसे हम जो है वो बस फोन पर दिलासा हमको दिया कि ऑल ऑफ देम आर टुगेदर. आई विश आई वाज देयर एज वेल, बट आई होप यू गाइज आर हैविंग फन. और हम आज एक्चुअली बात कर रहे हैं अबाउट children with special needs. They have some special care that they need to be rendered also, and we're going to talk about that after we come back from the commercial break. We'll try and see if we can get Sama back on the air. If not, then inshallah we'll give out some information here, and mostly we'd like to hear from parents that have had this experience, and we'll also share my experience. My sister's child is also a special needs child. We'll share that experience also with you after we come back from the break. Stay tuned to Radio Azad 11:10 a.m. Don't you think you owe yourself to get proper representation while making one of the biggest financial investments of your life? You need an expert like Shahid Siddiqui, a licensed real estate consultant since 1999, specializing in residential and commercial buyer and seller representation, new home specialist, property management services, leasing properties, foreclosure and investment properties. Call Shahid Siddiqui at 214-453-4117 or visit planohomesites.com. Don't forget to tune in to his show every Saturday from 12 to 1 p.m. on Radio Azad 11:10 a.m.
Most children don't like going to the doctor. They just don't like shots. Copel Pediatrics is the only office in the area to provide no needle vaccines through PharmaJet. Dr. Schlichtemeyer has been caring for children in the area for over 18 years. She provides well childcare, sick childcare, and excellent care for children with complex health problems, including asthma, heart disease, immune deficiencies, and children with ADHD, developmental delays, and autism. You can make appointments online, view your child's chart and labs on their portal. Visit them today at Copel Pediatric, where kids are treated like kids. Call them at 972-393-8687 or visit them at www.copelpedi.com. In a gas station business and running on empty, why not call the only fuel distribution company you can rely on? American Fuel Distributors, a dynamic Dallas-based company that supplies branded and unbranded fuels to stations across Texas, including Shell, Chevron, Texaco, Valero, Shamrock, and Conoco. Founded by Mr. Sean Bhagat, a prominent community leader, American Fuel Distributor offers competitive prices and dependable delivery of all kinds of fuel. They provide both honest and ethical pricing, as well as superb customer service that is uniquely tailored to fit your needs. For more information, please call 1-877-261-3835. That's 1-877-261-3835 or visit american-fuel.com. Imagine your child on a journey of self-discovery. Like the one taken by millions worldwide at Kumon Math and Reading Centers, where instructors use a proven method to unlock your child's full potential. Imagine your child accomplishing more each day than the day before. With Kumon, his successes are frequent and rewarding, so he's motivated time and again to seek out the next challenge. Imagine your child reaching heights no one ever thought possible. Because she's gained the skills and confidence to achieve more on her own. For over 50 years, Kumon instructors have helped children discover their own boundless possibilities. Imagine that. Let Kumon Math and Reading help unlock your child's potential so he can be truly amazing. For more information, please contact Trish at 817-707-7323 or email cumonofsouthlake@yahoo.com or cumonofcolligo@yahoo.com. सुनिए जी, आते वक्त पेप्सी की 2 कार्टन लेते आइएगा क्रोगर से। अच्छा। और मिल्की वे की 4 डब्बे कॉस्को से होलसेल में सस्ते मिलेंगे। अच्छा। और शक्कर भी तो लानी है। देखिए 10 पाउंड का बैग लाइएगा सैम्स क्लब से। अरे बेगम, मुझे करो बेगम। सुई से लेकर दवाई तक और डैलस से लेकर हवाई तक हर चीज मिलती है A to Z wholesale. So be Desi and buy Desi. A to Z Wholesale at your service in Waco and Dallas at Harry Hines. For more information, call 972-484-1153. And remember, be Desi, buy Desi. सुन रहे हैं आप रेडियो आजाद 1110 AM वॉइस ऑफ द पीपल विद योर मेजबान अरूज सईद। स्टूडियो का नंबर है 9725019390 एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय चिली पेपर, जहां पर आपको मिलता है जी 100% ऑथेंटिक ज़बीहा हलाल मीट, ऑर्गेनिक चिकन लैम्ब बीफ गोट और बहुत कुछ, सर्विंग एक्सलेंट सैंडविचेस, जायरोस, बर्गर्स, फिले स्टेक सैंडविचेस एंड ये हैं जी लोकेटेड रिचर्डसन में, स्प्रिंग वैली और ग्रीनविल पर, मैकार्थर एंड वैली रैंच इन अर्विंग and 972-444-8866 है चिली पेपर का नंबर। लेट्स टेक साइमा बैक ऑन द एयर, क्योंकि बहुत दूर से कॉल कर रही हैं हम को और इंतज़ार नहीं करवाना चाहते हैं उनको मजीद, तो थोड़ा सा अब हम पूछेंगे साइमा से अबाउट हुज एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट एंड हैज़ बीन अ टीचर इन अ स्पेशल नीड्स स्कूल फॉर द लास्ट 7 years. वीड लाइक टू आस्क साइमा हमको ये बताइए कि यू नो दीज चिल्ड्रन नाउ, अच्छा अब कुछ पता नहीं है किसी माँ बाप को, उनके घर में एक स्पेशल नीड्स का बच्चा पैदा हो गया है, व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स दैट अ पेरेंट शुड टेक फ्रॉम द बिगिनिंग और डायग्नोज? जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जो बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, जब हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बोलते हैं दैट मीन्स जो बच्चा बोलता है, चलना सीखता है, छोटी सी चीजें जैसे एट टॉडलर्स एज अराउंड 16-17 months बच्चा उठा के
कुछ सीरियल है बोलने से वो उठा के खाना शुरू कर देगा, अपनी माँ को, केयर टेकर को जो है चीजें पॉइंट करके बताएगा, कुछ बोलेगा। तो उसमें ये है कि ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स अगर माँ बाप को लग रहा है कि दे आर मिसिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा अब 1 साल का हो गया, ये चीजें कर सकता है, और जो कि सहूलत हमें नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है वो ये कि पीडियाट्रिशियंस के पास जब बच्चे जाते हैं तो वो माइलस्टोन मॉनिटर करते हैं। अगर कोई भी माइलस्टोन जैसे कोई स्पीच में है या डेली लिविंग स्किल्स में है या सोशल कम्युनिकेशन में है कि बच्चा पॉइंट नहीं कर रहा, सिंपल आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, जब माँ बुलाती है तो वो माँ की तरफ देखता नहीं है, तो अगर ऐसे कोई भी कंसर्न्स हैं जो माँ बाप के सामने आ रहे हैं तो द बेस्ट थिंग इज टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। आप पीडियाट्रिशियन से बात कर लें, आप जाके कम्युनिटी में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आई वुड से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हु आर अवेलेबल, उनसे जाके बात करें, एंड एट दैट पॉइंट दैट प्रोफेशनल विल डिसाइड कि कोई इंटरवेंशन जिसको हम कहते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करना एट द राइट टाइम, क्योंकि 3 साल से भी स्पीच थेरेपी, सोशल स्किल्स एक्वायरिंग ये सब शुरू हो जाती है, एंड समटाइम्स अर्ली इंटरवेंशन कैन बी हेल्पफुल एंड इट कैन प्रिवेंट फर्दर डेफिसिट्स। तो ये है कि माँ बाप अगर घर में छोटी छोटी चीजों का ट्रैक रखें, अपने बच्चों के साथ जब टाइम गुजार रहे हैं, उनको कुछ भी लग रहा है कि बच्चा सही वक्त पे चल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देम, तो अगर ये कोई भी चीजें उनको मिसिंग नजर आ रही हैं या अपने सिबलिंग्स के साथ या अदरवाइज और रिश्तेदारों के साथ वो सोशल इंटरेक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट, सो दोज आई वुड से आर कंसर्निंग मैटर्स। आई वोंट से रेड फ्लैग, लेकिन वो थोड़ी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि दे माइट नीड फर्दर प्रोफेशनल हेल्प। Okay, and these you're talking about the developmental delays जो होते हैं, and of course we know कि जब एक बच्चा डाउन सिंड्रोम जैसे फॉर एग्जांपल उसको होता है, वो तो फिर दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड देन फिर वो तो फिजिकल उसकी भी फीचर्स डिफरेंट होते हैं। राइट, और उसमें ये है कि फिजिकल फीचर, और जो पहले हम बात कर रहे थे फैमिली की, जो सपोर्ट एक फैमिली सिस्टम को प्रोवाइड करनी है, उसमें वालिदैन ही नहीं आते और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, बहन भाई भी आते हैं, एंड समटाइम दे नीड सपोर्ट कि उनसे बात की जाए, उन लोगों को भी ना सिर्फ उसके बारे में बताया जाए बल्कि ये सिखाया जाए कि आपने अपनी उस बहन या भाई के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे डील करना है। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी हेल्पफुल, और एट सर्टेन पॉइंट यू हैव टू इन्वॉल्व दैट चाइल्ड, क्योंकि जो एक चीज है अरूज, ये लीविंग बिहाइंड इज नॉट एन ऑप्शन, कि आप उस बच्चे को इंक्लूड नहीं कर रहे, उस बच्चे को सिखा नहीं रहे, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि हम जो अपने प्रोफेशन में कर रहे हैं वो ये है कि हर बच्चा जो है, ईच चाइल्ड हैज अ यूनिक टैलेंट, अ यूनिक स्किल सेट, जो कि आगे जाके बहुत flourish हो सकती है if given attention at the right time. So I understand it is difficult for the family, but giving up is not an option. Right. और अगर ये सही वक्त पे हेल्प किया जाए तो ये जरूर डेवलप हो सकता है। हाँ, जैसे एक आम बच्चे का लर्निंग टाइम जो है, लर्निंग स्पैन 5 से 10 मिनट है किसी भी स्किल सेट के लिए, इन बच्चों का थोड़ा ज्यादा होगा। और एक अरूज जो चीज जरूरी है इन वालिदैन के लिए, हर बच्चा अब जबकि हम बहुत ज्यादा बात करते हैं स्पेशल एड की, तो एक लर्निंग स्टाइल होता है, मतलब कई लोग देख के पढ़ के चीजों को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, कई लोग सुन के, कई लोग कहते हैं टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल, और एक होती है सेंसरी इंटीग्रेशन। उन प्रोग्राम्स में ये होता है कि मतलब वो उस बच्चे को जिसका लर्निंग प्रोसेस है वो फैसिलिटेट कर देते हो आप। और जैसे अगर आप मुझसे, इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई रीड इन्फॉर्मेशन एंड आई रिमेम्बर एंड आई रीड। कई लोगों को चीजें सुन के ज्यादा याद आती हैं या समझ आती हैं, तो हर बच्चा जो है वो अलग तरीके से सीख रहा है, समझता है। तो उस मामले में ये है कि माँ बाप को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा किन चीजों को ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, व्हाट इज वर्किंग फॉर हिम, और उन पे फिर आगे डेवलप करना चाहिए। राइट, बिकॉज जो है एंड द सेम डिसिप्लिन जो कि आप अपने नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं, वो कभी कभार आपको जो है ना वो थोड़ी सी नरमी बरतनी पड़ती है। आई अंडरस्टैंड विद दी स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, यू हैव टू शो देम मोर लव एंड मोर केयर।
Absolutely. I would say कि they require more attention. लेकिन अगर डिसिप्लिन करने में जो चीज गलत कोई आदत उस बच्चे में आ रही है तो आपको उसी की तरह ही सिखाना है कि ये चीज गलत है, ये नहीं करनी. लेकिन उसमें ज्यादा सब्र चाहिए और इट इज आई वुड से टाइम इंटेंस प्रोसेस, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है और सब्र भी लगता है. और ऐसा पॉइंट आता है जब माँ बाप दोनों को ये लगता है कि दे आर नॉट reaching the goal or they're not going anywhere with the child. लेकिन उस टाइम पे अगर आप continue doing what you're doing, the results are there evident and they are. मतलब उसमें मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में I have seen tremendous growth and improvement in these children. Absolutely. और having younger siblings I've seen, Saima, because हमने अपने घर पे भी अजरा के जो बच्चे हैं उनको भी देखा है कि after the younger siblings were born, there's so much that they learn from their brothers and sisters also. जो लर्निंग थ्रू मॉडलिंग है और जो बहन भाई चीजें उनको सिखाते हैं वो बिल्कुल ये बच्चे आम तरीके से भी सीखते हैं. और एक दफा मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि हम अगर ये कहें कि ये बच्चा नहीं सीख सकता, ये बच्चा बिल्कुल, ईच चाइल्ड इज केपेबल ऑफ लर्निंग. एज आई सेड, ऑल वी हैव टू डू इज have a different approach with certain children. That says it all. Have a different approach and lots more patience with these special needs. Patience and routine at home. कि इस बच्चे को एक discipline पता हो कि अगर मैंने 4 से 4:30 बैठ के अपनी माँ के साथ I have to read stories, I have to do mathematical skills, I have to do basic numbers, या मैंने basic shapes match करनी है. That is my time to do that with my mother. तो ये है कि extreme structure, बल्कि कई दफा हम माँ बाप को ये रिकमेंड करते हैं अरूज कि इन बच्चों की जो रूटीन है, लाइक अ टाइम टेबल, दे आर पोस्टेड ऑन द वॉल, ऑन द रूम वॉल इन देयर रूम. और उनकी जो जैसे बेसिक बिलोंगिंग्स हैं, उनके कपड़े हैं, जूते हैं, उनको पता है ये मेरी क्लॉजेट है, या मेरा दराज है, इसमें मेरे कपड़े, that's where my shirts are, that's where my pants are, everything is labeled. So उनका हमारा बेसिक गोल ये होता है कि we want them to be independent in daily living skills first. तो माँ ने सिखाया कि मैंने इस जगह से चीज ली है और मैंने इसी जगह से जाके चीज रखनी भी है. तो ये बच्चे जो है ना, extremely structured environment and routine, they benefit from that. Absolutely. And they can flourish as well as normal kids also. And these children, I want to tell our listeners, our community also, that to have patience with parents that have children like that, and थोड़ी सी उनके साथ जो है वो मतलब I mean इतने ignorant हमारे community के लोग हैं. I know जब my sister had a Down syndrome child, there was people, our own friends and family, that didn't know that अच्छा ये तो बच्चा कैसा पैदा हो गया है, क्या बच्चा तुम्हारा पागल है. I mean these were the words that were said. So मतलब not an ounce of आपको जो है ना वो हमदर्दी दिखाने के बजाय आप ये जहालत दिखाते हैं और कहते हैं कि जो है ना there's something wrong with your child. I think we need to educate our community also and tell them that ये बच्चा पागल नहीं है. हाँ, एजुकेटिंग अरूज, आपका जैसे एक्सपीरियंस है कुवैत में रहने का, और एज अ काउंसलर आई हैव नॉट ओनली वर्क विद चिल्ड्रन बट आई वर्क विद द पेरेंट्स एज वेल. और उसमें यही था कि मुझे जैसे बहुत से माँ बाप के मेरा बच्चा मैथ में अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में ये जो है ना एक जो टर्म्स आजकल यूज करना शुरू हो गए हैं कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, मेरा बच्चा रिटार्डेड है. तो आई वुड रिकमेंड टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दीज टर्म्स. और मेरा तो सवाल फिर होता है, फिर आप नॉर्मल को डिफाइन कैसे करते हैं? हर बच्चा डिफरेंट है, जिसको हम स्पेशल बोलते हैं. और उसमें ये बात नहीं कि मेरा किसी का बच्चा पागल है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं. हर बच्चा जो है वो आई वुड से दैट चाइल्ड लर्न डिफरेंटली. और जैसे कहा जाए कि कोई चीज आपका एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होगा और एरिया होगा जिसमें यू माइट स्ट्रगल, सेम गोज फॉर मी. तो इसमें ये नहीं होता कि ये चीज बेहतर है और ये चीज नहीं बेहतर, ये चीज नॉर्मल है या कोई. एजुकेटिंग द कम्युनिटी इज द फर्स्ट स्टेप. क्योंकि अगर हम चाहते हैं हम इन बच्चों को बेहतर फ्यूचर दें तो हमें पहले खुद को समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि आगे जाके हम इन बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करें. और आई अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट इट इज डिफिकल्ट, इट इज अ चैलेंज, लेकिन इट्स नॉट दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट इट. As a parent, it requires more work, more patience, but definitely the hope is there. Absolutely. And Saima, I thank you very, very much for joining us here on Radio Azad. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इतना अच्छा आपने जो है ना आके explain भी किया, shared your experience with our listeners also. Thank you so much, sweetheart.
Thanks for having me, Arush. Thank you so much. And I hope I covered the information that was required. Absolutely, absolutely. And yes, big hugs going out to everybody around you, all right? Sure. Thank you so much. Thank you. And yes, that was Saima all the way from Dubai call कर रही थी हमको and बता रही थी about these special needs children that she has been taken very, very special care of for the last 7 years. And आपने सुना an expert's opinion. You know, we've had in our family a child like that. Also very, very special child. He is, his name is Usman, or he is a Down syndrome child. And you know, he is extra special. That's all I can say about Usman. I wanted to say something about him also. I mean, I would like my sister actually to come on the air and say something about him also. But first, let's take your calls and your opinions at 972-501-9390. Good morning, you're on the air. गुड मॉर्निंग अरूज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, मैं सुन रही थी, रोज ही सुनती हूँ, लेकिन आज टची था क्योंकि मैं खुद भी इससे गुजरी हूँ कि मेरा भाई भी मेंटली रिटार्डेड था और उसके लिए भी हमने मतलब बचपन गुजारा कराची में, जाहिर है, लेकिन वाकई ये बड़ी अहमियत वाली बात थी कि हम बच्चों को तो ट्रेन करते हैं लेकिन पेरेंट्स एंड कम्युनिटी दे नीड्स टू बी ट्रेन टू। वाकई यानी कि मुझे खास तौर से मुझे अपने लिए याद है कि आई वाज कॉल्ड कि ये वो है पागल की बहन। आई मीन दैट्स वेरी hurt when somebody really use those words and yes, it's really हमें अपनी कम्युनिटी को बहुत बहुत ज्यादा, और क्योंकि अभी भी मेरा ताल्लुक पिछले 20 साल से हूँ मैं अमेरिका में और मेडिकल से ही मेरा ताल्लुक रहा, और अभी भी पेशेंट आते हैं जिनके पेरेंट्स अपने बच्चे लेकर आते हैं, जो जिस तरह से लोग उनको उसी वेटिंग रूम में बैठ के देखते हैं और रिस्पांस देते हैं, दैट रियली रियली हर्ट्स। क्योंकि हमेशा मुझे याद आ जाता है अपना भाई और मुझे वो फीलिंग आ जाती है, ओ माय गॉड, द अदर जो उसके रिलेटिव हैं वो इस वक्त वही फील कर रहा हूँ जो मैं फील करती थी व्हेन आई वाज यंग चाइल्ड एंड आई वाज कॉल्ड लाइक पागल की बहन, और इनका भाई पागल है या इनका बेटा पागल है, या इस तरह के वर्ड्स जो वाकई हमें कम्युनिटी को बहुत बहुत ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। प्लीज डू, आप बहुत सुनते हैं लोग, कोशिश कीजिए कि वाकई ये लेके आइए, आप बार बार मौजू सिखाइए कम्युनिटी को, प्लीज रिस्पॉन्स देम टू बी अ नॉर्मल, एटलीस्ट कॉल ना करें उनको इस तरह और समझाइए उन्हें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दैट विद अस उस्मा जी। और यस, दैट इज एब्सोल्युटली हार्टलेस, calling somebody पागल की बहन या पागल की माँ. I mean, what kind of jahil people are these calling them names like this. I mean, I can't imagine what kind of an वाकई खुद जो है ना वो खुद पागल ऐसे लोग हैं कि जो using words like that. Really don't want to say too much of that. That's very painful experience as it is that the parents are going through, and you're putting them through much more, and the entire family goes through a lot. It is very, very challenging bringing up a child like that. But today we want to talk to parents and even to siblings, who've had any other relative, family or friends that have had children like that, that are special needs children. We want to take a short commercial break. When we come back, we'll talk to some more parents. Whatever you have observed or know about the subject, we'd like for you to come and share that with our listeners right here on Radio Azad, 11:10 a.m. Stay tuned right here. You are listening to Radio Azad, KVTT 1110 AM, Mineral Wells, Dallas, Fort Worth. Imagine your child on a journey of self-discovery. Like the one taken by millions worldwide at Kumon Math and Reading Centers, where instructors use a proven method to unlock your child's full potential. Imagine your child accomplishing more each day than the day before. With Kumon, his successes are frequent and rewarding, so he's motivated time and again to seek out the next challenge. Imagine your child reaching heights no one ever thought possible. Because she's gained the skills and confidence to achieve more on her own. For over 50 years, Kumon instructors have helped children discover their own boundless possibilities. Imagine that. Let Kumon Math and Reading help unlock your child's potential so he can be truly amazing. For more information, please contact Trish at 817-707-7323 or email kumonofsouthlake@yahoo.com or kumonofcolligo@yahoo.com. The
कैटेगरी इज एटर्नल लव स्टोरीज। बताइए, इनमें से कौन सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग थी? लैला मजनू, हीर रांझा या जोधा अकबर? जोधा अकबर। बिल्कुल सही जवाब। एक कामयाब जोड़ी के लव स्टोरी का पैगाम और प्लेनो में लाजवाब खाने का बढ़िया इंतजाम। जोधा अकबर, serving daily lunch and dinner buffet with a variety of veg and non-veg items and desserts including Gujarati dishes. Tuesday का स्पेशल है $6.99 for lunch and dinner buffet. Located है right off of Highway 75 on 301 West Parker Road in Plano. Call कीजिए उन्हें at 972-398-7934 or visit their website at jodhaakbarplano.net. Mention Radio Azad to get 15% off for a limited time. जोधा अकबर, जहां पर आपकी डाइनिंग एक्सपीरियंस की होगी हैप्पी बिगिनिंग और हैप्पी एंडिंग। Hi, this is Kimberly Kinzer, a full-service immigration attorney. I handle green cards for family members and employees, fiancé visas, investors visas, employment visas, Violence Against Women's Act petitions, deportation defense, asylum, citizenship, including waivers for the English and history exams. My law firm is also experienced in handling complicated cases and cases pending too long, and most importantly, federal litigation. In the hour of need, do remember Kinzer Law Office in Richardson. For more information, please visit kinzerlaw.com or call 972-491-1145. That's 972-491-1145. Welcome back, ladies and gentlemen, listening to Radio Azad 1110 AM, Voice of the People. मैं हूँ आपकी मेज़बान रूज सईद। स्टूडियो का नंबर है 972-501-9390. This part of the program has been brought to you by Sheetal Fashions, under new management and great customer service to go with it. Indian Pakistani designer wear मिलता है यहाँ पर आपको, and alteration भी available है. Exclusive designs of shalwar kameez, kurta pajamas, sarees, Gul Ahmad की लॉन, लखानी लॉन, सना सफीनाज जैसे डिजाइनर नेम मिलेंगे आपको एट शीतल फैशंस. मेंस वेयर भी है, कुर्ता शलवार, शेरवानीज एंड किड्स वेयर, बच्चों के कपड़े एजेस 5 to 15 अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. न्यू शिपमेंट आती है जी इनकी एवरी 2 to 3 days now that it is Ramadan and yes, Eid is approaching, so of course lots and lots of shopping to do for people. Go check out their new shipment that comes in every few days. इनके पास टेलरिंग सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, ज्वेलरी, बैंगल्स, एक्सेसरीज वगैरह. ओपन है from 11 to 8 p.m. daily, 7 days a week. Located in Richardson at the intersection of 75 and Beltline in the Taj Mahal Imports Complex. For more information, आप कॉल कर सकते हैं बॉबी को at 972-437-3335, 972-437-3335. And a Radio Azad special for all of our wonderful listeners, 20% off when you mention Radio Azad. बात कर रहे हैं हम जी about the special needs children that need some special care. We were talking to an expert and we spoke to one sibling as well. Now we'd like to take a parent on the air who has a special needs child, and she would like to talk to us and share her experience with us. Assalamu alaikum Saraya ji. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रुजा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है. आज आपकी टॉपिक थी तो मैंने चाहा मैं भी कुछ कह दूँ आपको. जी जरूर. मेरा बेटा है स्पेशल नीड. आज 2 रमजान है तो उसकी सालगिरह है. बहुत बहुत मुबारक हो. क्या नाम है आपके बेटे का? सफी अहमद है इनका नाम, और आज ये माशाल्लाह से 25 साल के हुए. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह. हम उनके लिए एक स्पेशल गाना प्ले करेंगे. जी जरूर. सराय जी, मुझे ये बताइए आप के बच्चे को जो है वो मतलब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली इनका जो है ब्रेन डैमेज हो गया था मेरे ख्याल से पैदाइश के 2-3 दिन के बाद. ऐसा कुछ इनको फीवर कुछ आया था. वो इंडिया में पैदा है तो वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह तो बताते नहीं ना कि क्या प्रॉब्लम है. मतलब मैं 25 साल पहले तो मैं शायद इतना जानती भी नहीं थी कि ऐसे बच्चों के बारे में.
तो जब पैदा हुए तो 2-3 दिन के बाद में ये बेहोश हो गए। तो बेहोश होने के बाद में 2-3 दिन तक ये समझो बिल्कुल उसी में उनकी पूरी बॉडी और पूरा ब्रेन डैमेज हो गया था। तो उसके बाद जो 25 साल से अब तक मैं संभालती हूँ, शायद अल्लाह में किसी बार बहुत मुश्किल रहा होगा आपका ये 25 साल का सफर जी। ये क्या है, एक कदम हमको ऐसा देखना पड़ता है कि हम अपनी पूरी लाइफ इन पे लगा देते हैं। तो खैर एक ही बच्चा है आपका? हाँ जी, एक ही बेटा है मेरा। तो फिर जब ये 2 साल के थे मेरे बेटे, तो मेरे हस्बैंड यहाँ US आ गए थे। तो मैं तकरीबन फिर 12 साल तक मैं इनको अकेले देखती रही वहाँ मेरी अम्मी के साथ। वहाँ मेरी फुल टाइम जॉब भी थी, तो माशाल्लाह से मैं उनको इस तरीके से करी थी कि मेरी वालदा इनकी बहुत खिदमत की। तो और ये मेरा बेटा क्या है, ये बात करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये और इनको हम कभी अकेला छोड़ नहीं सकते 1 मिनट के लिए भी। कभी इनको सीजर्स आ जाते हैं, कभी ऐसे गिर जाते हैं ये। तो मतलब ये बहुत केयर के लिए होती है इन लोगों की खिदमत करना। बस अल्लाह ताला, आज मैं सोच रही थी करने के बाद आजाद साहब को बोलूंगी कि उनके लिसनर से दुआ करें कि सब्र मिले उनको। मतलब इनको संभालने के लिए जो कुव्वत और ताकत होती है वो अल्लाह ताला की देन है। और मैं इनको 2 बार मैं इनको काबे शरीफ ले गई, मदीने शरीफ ले गई मैं रमजान में। ये बगदाद शरीफ गए हुए हैं। ये मेरी हाइट के हैं, मेरा वेट है इनका, लेकिन ही इज सिटिंग ऑन हिज चेयर एंड ही कैन डू हिज ब्रशेस और ये अपने खुद से खा सकते हैं, पी सकते हैं। इनको अपना फोन नंबर याद रहता है, घर का रास्ता याद रहता है। अच्छा। और कल में तैयब याद है, आयतल कुर्सी याद है। मेरी वालदा ने 14-15 सूरत याद दिलाए थे इनको। तो अगर ये स्कूल जाते थे यहाँ पे न्यू जर्सी में और इंडिया में भी, तो ये जब 21 के हो गए तो उस वक्त इनको ये स्कूल नहीं है यहाँ पे। यहाँ के हिसाब से ये ग्रेजुएट कर लेते हैं 21 ईयर में। अच्छा। तो फिर जब से ये घर पे होते हैं तो इनको हमको देखना पड़ता है। ये बाहर जाने के बहुत शौक है। ये आपकी आवाज पहचानते हैं और फरमाइश करते कि कोई गाना गा दो, ऐसा इस तरीके से। और ये मैं जब यहाँ के स्टोर्स वगैरह में हम इनको बहुत लेके जाते हैं, मतलब खाने पे रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो इनको बिस्मिल्लाह स्टोर के शर्जील साहब बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। अच्छा। डेरा ग्रिल के सईद भाई पहचानते हैं। खाने पीने के शौकीन है। हाँ, बिरयानी के बहुत शौकीन है वो, और माशाल्लाह से चाय के शौकीन है। सुरेश जी, मुझे ये बताइए कि टू मेक देम इंडिपेंडेंट फॉर चिल्ड्रन लाइक दिस, क्या मेजर्स होते हैं? मतलब आपने बात की है, इज देयर समथिंग दैट कंप्लीटली जैसे कि लेकिन हम समझे इनको यहाँ पे बहुत सारे न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन हर एक के पास ले गए थे। लेकिन उनका कहना है कि ये इनमें हरकत है तो इनका जो है पैरों का कुछ ऑपरेशन हो नहीं सकता, और ब्रेन इतना डैमेज हो गया है कि हम इनका कोई एक पार्ट नहीं निकाल सकते। मतलब यहाँ पे मेरे ननन के हस्बैंड भी वो है, न्यूरो सर्जन है, तो वो कहते हैं कि ब्रेन का एक पार्ट निकाल देते हैं, लेकिन इनका ब्रेन इतना डैमेज है कि हम वो पार्ट भी नहीं निकाल सकते। तो इनका वो ब्रेन से गया है, इनकी स्पीच के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा। तो ये बात बहुत करते हैं, ये इंग्लिश में भी टीचर्स से इंग्लिश वगैरह में बात करते थे, समझते थे। तो अब ये क्या इनकी हॉबी है, डीवीडीज देखना, कंप्यूटर पे एक इंडेक्स फिंगर से टाइप कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, यहाँ पर तो अमेरिका में रहते हुए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब अगर कोई जैसे कि छोटी मोटी जॉब करनी हो या इस तरह का कुछ, अगर इवन सिटिंग एट होम, इज देयर ऑप्शंस? हैव यू ट्राइड आउट, हैव यू सीन हाँ, नहीं, वो यहाँ क्या है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट वगैरह में उन लोग अपने से कुछ फैसला करते ना, तो उन लोग देखते कि ये किस हद तक एबल है कि कुछ करने के। तो इनकी क्या है, एक बार 4 साल के थे तो इनको हेमीपैराइटिक के जैसा अटैक आ गया था, तो इनका
लेफ्ट हैंड वगैरह ज्यादा काम नहीं करता, और ये टॉयलेट को क्या है इंडिपेंडेंटली जा नहीं सकते ना। अच्छा। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अगर जॉब वगैरह हो तो इंडिपेंडेंटली टॉयलेट जाना होता है इन लोगों के पास, मतलब व्हील चेयर खुद से ऑपरेट करना। तो अब इनका एक हाथ ज्यादा काम नहीं करता, तो उस वजह से जरा इनको हम वो उसमें नहीं लगा सके। मतलब इनको देख बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह बहुत सारे देखे करे, लेकिन अब यहाँ पे हम कोई स्टोर खुले तो उन लोग बहुत जो गोरे लोग होते ना वो बहुत अप्रिशिएट करते। ओहो ये बच्चा पेरेंट्स के साथ रहता है, आई थिंक देयर इज अ स्पेशल प्लेस इन हेवन, लाइक ऐसे टाइप से इन लोग हमारी हिम्मत थोड़ी बढ़ाते हैं, लेकिन अपने लोग पलट के चले जाते हैं, ये पुकारते रह जाते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बोले तो कोई पलटते ही नहीं बेचारा। कोई एक आध 100 में कोई 1-2 लोग पलट के देख के बात कर लेते हैं। They are the ones that are diseased. Those are the retarded people, सुरैया जी। हाँ, लेकिन वो बिस्मिल्लाह स्टोर में उन्होंने हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। पहले शुरू में हम ज्यादा वहीं जाते थे, वो शाजिया भाभी वो जो उनके शर्जील अंकल सब उसको बहुत अच्छी तरह पहचानते, लेकिन अब यहाँ बहुत दूर रहते हम लोग तो वो स्टोर जाना बंद हो गया अब हमारा। सुरैया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ आके, और जस्ट लेटिंग द पीपल नो कि हमदर्दी की जरूरत है। जी हाँ, बस लोग मेरी ये रिक्वेस्ट है कि रमजान शरीफ है तो लोग दुआ करेंगे बस अल्लाह ताला ऐसे बच्चों पे रहम करे, ऐसी माओं पे रहम करे खुसूसन। देखिए आप जो हैं वो स्पेशल हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको इतनी स्पेशल आजमाइश में डाला है, और अल्लाह ताला अपनी जो है वो कहते हैं ना कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, क्या था अल्लाह ताला पता नहीं क्या मसला थी जो मतलब मुझे कैसी आजमाइश में डाला है, तो ऐसे बच्चे की खिदमत करने के लिए मुझे वो किया है ना। तो मेरे ऑफिसर्स वगैरह जो थे वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे, तो उन लोग कहते थे कि देखो ये लेडी को देखो, इसका बच्चा ऐसा है, ये फिर भी टाइम पे आती है, टाइम पे काम करती है। वो दूसरे लेडीज को वो करते थे, क्या है तुम लोगों को क्या होता, क्यों नहीं आते तुम लोग, ऐसा इस तरीके से वो डांटते करते थे वहाँ पे। सुरैया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जो है ना वाकई हिम्मत की दात देनी पड़ेगी, और वाकई अल्लाह ताला जो है अपनी बर्दाश्त से ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं देता। ला युकल्लिफुल्लाहु मैं वही समझती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे कंधे सहारने के लिए मतलब इतना सब्र वो किया है मुझे। एक बात कहनी थी मैं, तो मेरे जो फ्रेंड्स इंडिया में है ना, तो उन लोग मुझे जब भी मैं यहाँ से जाती तो मुझसे कहते अरे तुम्हें शुगर नहीं है, तुम कोई कोलेस्ट्रॉल की गोली नहीं खाती हो, तुमको कुछ नहीं है, बीपी नहीं है। अरे तो मैंने कहा अरे तुम लोग शुक्र करो कि मेरा बच्चा ऐसा है, तो अल्लाह ताला मेरे को सेहत दिया, अगर मुझे सेहत होगी तो मैं बच्चे को संभालूंगी ना। किस किस्म के लोग हैं जो कि मतलब एक सेहतियाब इंसान को देख के ये सवाल पूछते हैं? हाँ, इतना अभी क्या है, मैं 50 क्रॉस कर ली हूँ, मैं 52 इयर्स हूँ मैं, तो मेरे दोस्तों को वगैरह वहाँ पे बहुत सारी लेडीज वगैरह हैं, बीपी के गोलियां खाती हैं या कुछ शुगर वगैरह है, तो उन लोगों को शुगर करना चाहिए ना कि मतलब मेरे बच्चे की इतनी बड़ी वो है, तो मुझे इतना अल्लाह ताला की शुक्र गुजार हूँ मैं कि वो मुझे सेहत की नेमत से वो किया है ना। और सुरैया जी एक इस शो को करने का एक और मकसद भी ये था कि लोग जो हैं अपनी तरफ देख के शुक्र अदा किया करें। इतने नाशुक्रे लोग हैं, हर चीज अल्लाह ताला ने दी है, नवाजा है, नॉर्मल हेल्दी बच्चों से नवाजा है, और उसके बाद भी जो है वो कुड़ करना जो है वो नहीं छोड़ते। बात है, अगर किसी की बेटी होती ना तो उसके लिए तो सचमुच और भी मतलब सबर तलब जॉब होगा ये, मतलब लड़के कम से कम वो पीरियड्स वगैरह का तो वो नहीं होता ना, तो अगर जिसके लड़कियां हैं तो उनको ये सब चीजें भी वो करना पड़ता है ना, मतलब जी वो बच्चियों को पता नहीं होता कि क्या है सब पीरियड्स वगैरह में। They need some special care, that's for certain, and like I said, there's a lot of reasons that people need to be educated. At least they should hear of
of parents such as yourself और जब that ये suffer स्कूल from में this. यहाँ पे जाते थे तो मैंने देखा था कि कई बच्चे बेचारे ट्यूब फीडर होते हैं, मतलब उनको नर्स आके लंच के टाइम में कुछ जूस वगैरह वो उनके ट्यूब से इंजेक्ट करती है, वो बच्चे खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। तो रियली मेरे को वो तो टाइम में उन बच्चों को देख के मुझे बहुत वो होता था कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को कम से कम कम्युनिकेशन किया कि वो टॉयलेट को बोल सकता है, रात में भी मुझे उठाता है, अगर वो रमजान का अज़ान या फिर अज़ान सुन के बहुत खुश होता है और वो जुमे का खुतबा वगैरह हुआ तो 2 रकात मम्मी मैं नमाज पढ़ता हूँ, इस तरीके से वो अल्लाह अकबर कहते हुए झुक जाते। अगर कार भी चलती होती तो कार में भी सजदा कर लेते। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया जी। आई मीन आई नो देयर इज सो मच टू शेयर, टाइम पड़ जाएगा लेकिन हम बोलने और बातें रह जाएंगी, इसलिए थैंक यू सो मच फिर आपने मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और हम गुजारिश करते हैं लोगों से कि दुआ कीजिए, सफ़ी अहमद नाम है यस, और उनकी आज बर्थडे है, उनके लिए खास दुआ कीजिएगा, उनके माँ बाप के लिए खास दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और ताकत दे कि you bring up a special, you are special, that's why Allah Ta'ala has given you this special आजमाइश also, because Allah Ta'ala अपनी बर्दाश्त से ज्यादा किसी को जो है वो नहीं बोझ देता, he doesn't test you more than you can bear, no burden he places on you more than you can bear। और सफ़ी की आज बर्थडे है तो सफ़ी के लिए हम एक गाना लगाएंगे, लेकिन हम आएंगे ब्रेक के बाद and we'll talk more about this। And yes, one of the reasons I wanted to do this show is of course it's a very very wide spectrum, like Saima had said, lots and lots of things that we can talk about endlessly, but the main purpose of this is making people aware that they have so much to be thankful for, and stop being so thankless and count your blessings is all I can say। We'll come back after a short commercial break and we'll continue this program। Stay right here on Radio Azad 11:10 AM। मम्मी मुझे जायरो खाना है। कोई जरूरत नहीं है, हलाल जायरो कहीं नहीं मिलता। मिलता है, चिली पेपर में सब हलाल ज़रिया मिलता है। All kinds of sandwiches, pizzas, burgers, chicken wings और डैलस की बेस्ट बिरयानी आपके लिए। लेकिन स्प्रिंग वैली और ग्रीनविल पर कौन जाएगा इतनी दूर? अरे माँ, अर्विंग में मिकासर और वैली रंच पर भी एक ब्रांच है जिसके साथ मीट शॉप की है, ऑर्गेनिक और नेचुरल मीट, चिकन, लैम, बीफ, गोट और स्टेक मीट के लिए। तो ये अर्विंग में फोन नंबर क्या आएगा? 972-444-8866 और रिचर्डसन में 972-480-8998। डैलस शहर में दिल के डॉक्टर तो बहुत, लेकिन दिल का डॉक्टर हो और दिल वाला भी हो, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। डॉक्टर सलमान मलिक at Cardiovascular Clinic of North Texas, offering full range of cardiovascular services including stress test, EKG, echocardiogram, cardiac cath, coronary and peripheral intervention, pacemaker insertions and management. Located in Denton. If you are concerned about your heart, you will find him concerned about you. Call him at 940-384-9000. That's 940-384-9000. Or visit NorthTexasCardiology.com. मुझ बेचारी बुढ़िया को इतना काम दे जाती है, कितनी फूहड़ बहू है, खुद सुई में धागा डालना भी नहीं आता। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ के अलावा कोई नहीं मिलता तुम्हें ब्लाउज सिलवाने के लिए? सासू माँ जैसा साड़ी का ब्लाउज डालस में कोई सीता भी तो नहीं है। आखिर कहाँ जाए ये बेचारी अबला नारी? मिसेस हमीद को मैंने कहते हुए सुना था कोई एशिया फैशन एंड टेलर के बारे में, जहाँ से उन्होंने अपनी बेटी का पूरा जहेज सिलवाया था। सलवार कमीज, चूड़ीदार, साड़ी के ब्लाउजेस, फॉल वगैरह। हाँ, वैसे मैंने भी उस्मा को एशिया फैशन एंड टेलर का जिक्र करते हुए सुना था। अनस्टिच मटेरियल, रेडीमेड कपड़े, ब्लाउज के फैब्रिक्स, पीको और ओवरलॉक तो फ्री कर देते हैं। वहीं जाऊंगी अब से। Asia Fashion and Tailor, located at the corner of 183 and O'Connor in Irving. Call Zahura Noor at 972-408-7966. Mention Radio Azad to get 10% off.
Our daughter Tina's getting married. I wish Mummy, Papa, Guddu Masi, Tinku, Ria सब हमारे साथ अमेरिका में होते. हाँ, लेकिन इतने सब लोग फिर मम्मी की बीमारी, इंश्योरेंस का क्या होगा? No need to worry. VisitorsCoverage.com is the place to go for all of your insurance needs for parents, relatives, and family members visiting from abroad. On VisitorsCoverage.com, you can get instant quotes, buy it online, and print ID cards. It's that simple. For more information, please call 866-384-9104 or log on to VisitorsCoverage.com. Remember, for visiting parents insurance, the name you can trust is VisitorsCoverage.com. VisitorsCoverage.com. आपकी खुशियों में शामिल. TM Video, specializing in photography, videography with 10 years of experience. For all your weddings, anniversaries, engagements, birthdays, graduations, etc. Let TM Videos take care of your photography and videography needs. They can also provide you with a DJ and live music. Mention Radio Azad and get 25% off any quote that you have received. Contact Ali Dhamani at 469-556-7271. 469-556-7271 or visit them at tmvideos.net. सदा इसलिए खामोश हूँ मैं एतबार इतना है प्यार इतना है मदहोश हूँ मैं तू सुने दिल की तो हर आन तेरे दिल की उमंगों में रहूं और बेताब रफ़ाकत की तरंगों में रहूं तू जहां भी रहे मैं तेरे listening to Radio Azad 11:10 a.m. Voice of the People. मैं हूँ आपकी मेजबान अरूज सईद. 9725019390 हमारे स्टूडियो का नंबर. This part of the program has been brought to you by Dera Grill and Kebab House. Radio Azad is very pleased to announce to the whole community about the second location of our favorite Dera Grill Kebab House. ये है जी I-35 and Frankfurt पर in Carrollton. Yes, Highway 35 and Frankfurt in Carrollton. फोन नंबर है इनका 972-242-2800 972-242-2800. डेरा ग्रिल आप सबको पता है provides high quality food in a family friendly atmosphere. You can try their delicious grill selections and a variety of tandoori entrees. Catering services also available with Dera Grill Kebab House और ये located है Irving में भी, Walnut Hill and Story Road पर. हमारे स्टूडियो का नंबर 972-501-9390 है. Before we take our next caller, I just wanted to add, a note for the parents, especially that are
taking care of their special needs children. And that, I wanted to say that बहुत encouragement की of course ज़रूरत है. You need to tell these parents also constantly how strong they are. And Suraya ji, this is especially for you, and I read this somewhere. It said, you are strong. How often has it happened an acquaintance hears your story or sees your child and says, I'm not as strong as you. I could never deal with all the things you deal with. And you shake your head modestly and brush it off, and maybe even feel a little condescended to. But you know what? They're right. You're strong. You're facing things that the average parent doesn't even want to imagine, and you're handling them. Whether you were strong to begin with or had strength thrust upon you by necessity, you're one strong parent. One strong person. Your family needs that strength. Your children thrive on it. You may wish you never had to be so strong, but appreciate that strength now. It makes you special, capable, a force to be reckoned with. And आपसे भी हम सुनेंगे some words of encouragement, some things that you would like to talk about, for the parents, especially for the parents of special needs children. And we spoke to an expert earlier on, and she gave us a detailed description of, children with disabilities. Now, there's a lot of disabilities. Of course, there's, depending on how the severity of your child's disability, that's how. So each case, each child has to be dealt with individually. So you really don't know. First of all, of course, आपको ज़रूरी है ये कि आप अपने बच्चे को developmental उसके जो milestones हैं वो देखें कि मतलब if he's covering that as he's growing up, then there's other one-on-one things that you need to talk to about your अपने बच्चे के बारे में अपने pediatrician से बात करें, so on and so forth. Now, but again, if we move on into that area, that's going to be too much of that's going to be too much information, or matlab I don't think we'll be able to cover that sufficiently today. So what we'll stick with for the next half an hour, we'd like to hear from parents, from siblings, from family, friends, about cases that they have seen, children in their house that they've seen that they are kids with special needs, and share their experience with our listeners at 972-501-9390. Ji, good morning. वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक. आज आपने बहुत ही जो है ना मतलब वेरी सेंसिटिव एंड येट वेरी टची इशू है जिस पे आपने आज बात की है. और मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि वाकई में जो आप कह रही हैं कि आप you get tears in your eyes when you see like वो ममता क्या ममता होती होगी जो हम तो एक्सपीरियंस भी नहीं करते कि इतना प्यार, इतनी शफकत वो पेरेंट्स जो देते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट इवन फादर्स अपने उन स्पेशल नीड्स के बच्चों को. तो मैं तो मतलब आई रियली फील कि उनको मेरा दिल करता है कि आई शुड हग ईच एंड एवरी मदर हु डज गो थ्रू ऑल दैट. एंड वाकई में it's very encourage मतलब आप जितना उनके बारे में कहो कि वो स्ट्रांग है, वो मजबूत हैं, वो इतने लविंग हैं, वो भी मुझे लगता है बहुत कम है यानी उनके बारे में ये कहना. बिल्कुल सही कहा. और अल्लाह ताला ने उनको मतलब इतनी इमेंस ताकत दी होती है. वो वाकई में मैं समझती हूँ कि मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ. बीइंग अ पेरेंट मैं उनको देखती हूँ तो मुझे अपना आप बहुत छोटा लगता है. तो मेरे साथ एक I would just like to share this with you that I have had experiences in my family. My मेरे चचा के हैं बेटे, and mashallah they moved from all over the world उसको सेटल करने के लिए कि कहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट है जो उसको सूट कर रहा है. और इवेंचुअली उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के they came back to पाकिस्तान. और माशाल्लाह उस बच्चे की जो ग्रोथ वहाँ पे थी अपने लोगों के साथ, वो उन्होंने
उस चीज को यानी डिस्कवर किया कि विद इन 3 years ऑफ टाइम उस बच्चे ने इतना सीखा उस एनवायरनमेंट में जो शायद वो इंग्लैंड में भी नहीं सीख पाया, इवन एल्सवेयर ही कुडंट, यू नो. तो समटाइम्स एनवायरनमेंट, एनकरेजमेंट, फैमिली सपोर्ट सिस्टम इस तरह के सिचुएशंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. राइट. फैमिली सपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट है, यू नो, ये देखा आपने कि नॉट जस्ट द पेरेंट्स बट द सिबलिंग्स एंड द एक्सटेंडेड फैमिली आल्सो, दे नीड टू बी वेरी सपोर्टिव ऑफ, एंड वी ऑल वर देयर. एंड यू नो लाइक एक चीज हमने सीखी उनसे कि वो कहते थे कि नेवर ट्रीट हिम लाइक, you know, ठीक है, you know that he's different. Right. Don't make him understand that he's different. Exactly. That was so vital. जब कजन साथ भी बैठते थे तो हम उसको कभी, मतलब हमें पता था बट उसको हम ट्रीट नहीं करते थे. बेशक वो कुछ चीज करने में टाइम लगाता था, लेकिन हम उसको वो टाइम देते थे. बट वी वुडंट गो एंड पिक दैट थिंग अप फॉर हिम, यू नो, वो तो नहीं ले सकता. उस चीज ने उसको इतनी एनकरेजमेंट दी. एंड यू नो व्हेन ही वुड डू समथिंग, वी वुड लाइक ऑल ऑफ कजन्स और हमारे सारे फैमिली, वी वुड यू नो मेक श्योर कि किसी को शाबाशी मिले या ना मिले, लेकिन जब वो कुछ करता था तो उसके लिए बहुत ज्यादा यू नो अपलॉड होता था, बहुत ज्यादा वो होता था. तो मतलब जस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि यू नो अचीवमेंट्स आर इम्पोर्टेंट एंड यू कैन ऑल्सो डू इट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो उसके जो स्पेशल इवेंट्स होते थे स्पोर्ट्स के या कुछ भी ऐसा, तो यू नो वी वुड मेक इट अ पॉइंट कि हम टाइम निकाल के जरूर जाएं वो देखने. That is so. तो और मुझे याद है कि देयर वाज दिस, सॉरी आपको थोड़ा टाइम ले रही हूँ, बट यू नो हम वही आपकी बात कि हम शुक्र नहीं करते, हम बैठे होते हैं तो कंपैरिजन अपने बच्चों का शुरू कर देते हैं. आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि हम उस वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे के यू नो हर चीज अल्लाह ताला ने अपनी प्रोपोर्शन से दी है, बैलेंस दी है. और यू नो छोटी छोटी बातें कि इसकी आंखें बड़ी, इसका ये है तो इसके बाल ऐसे हैं, तो इसके वो है, तो ये इतनी देर से बोलना शुरू किया, तो इसने ऐसे किया. तो यू नो देयर वाज दिस लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी सेड सच, मतलब इतनी मुझे जाके दिल को लगी ये बात. सर कि ये लोग कंपैरिजन किस बात का कर रहे हैं. मेरे बच्चे ने मुझे 4 साल लगे उसको सिर्फ माँ कहते हुए. और ये तो आप देखें ना कि मतलब ये तो चले मतलब डेवलपमेंटल उसकी बात कर रही हैं कि मतलब यू नो आंखें छोटी बड़ी हैं. सबसे बेसिक चीज जब लड़का या लड़की पैदा हो जाती है तो वो उस पे कितना जो है वो रोना होता है कि लड़की पैदा हो गई, हमें तो लड़का चाहिए था. मतलब इतनी आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं. वाकई में एक एक पल का शुक्र करें कि औलाद आपके सामने एक बहुत बड़ी नेमत है. और this is a very good topic, Uruj. I mean, hats off to everybody who is taking care of their special needs child, and I salute to them. Thank you very much for your contribution, ma'am. And stay with us. Sunti rahega, Radio Azad, 11:10 a.m. And Janabi Wala, yes, we are talking about these special needs children that need special care. There are some certain misconceptions also with special needs kids. एक तो ये चीज हमने सुनी है और ये जब तक जो है वो देखा नहीं, यू नो, एग्जाम्पल तो पता नहीं चला कि ये वाकई सही थी या गलत थी. मिसकंसेप्शन अबाउट हैविंग स्पेशली I'll talk about Down syndrome because my sister has a Down syndrome child. His name is Usman और 9 साल का बच्चा है. कलेजा है हमारा, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है. He is the most, out of my 14 nieces and nephews, I tell you, he is the most loving child out of all 14, Usman. And वो जब पैदा, ही इज माई सिस्टर सेकेंड बॉर्न चाइल्ड, और पहला जो उसका बच्चा था उमर, माशाल्लाह, ही वाज यू नो मेंटली was you know fit, लेकिन उसके साथ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम उसके हाथ में थी. यू नो some of his nerves दब गई थी एट बर्थ. एंड देन सेकंड जो था वो उस्मान पैदा हुआ. एक मिसकंसेप्शन जो कि हम सुनते आए थे कि अगर फैमिली में शादी हो, मतलब फर्स्ट कजन्स में शादी हो, तो जो है वो बच्चे शायद यू नो डाउन सिंड्रोम या फिर विद सम डिसेबिलिटी पैदा होते हैं.
ये मैंने नॉट ओनली इन माई सिस्टर बिकॉज शी इज मैरिड टू समबडी कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द फैमिली, उसमें देखा है, और भी बहुत सारे जो है ना, आई हैव सीन अदर केसेस आल्सो, एंड दैट इज नॉट करेक्ट. दैट इज अ कंप्लीट मिसकंसेप्शन कि अगर फैमिली में शादी हो तो बच्चे जो हैं वो अबनॉर्मल या फिर मतलब स्पेशल नीड्स के साथ पैदा हो सकते हैं. दैट इज वन थिंग दैट इज नॉट राइट. सेकेंडली, लेट प्रेगनेंसीज. ना लेट प्रेगनेंसीज की देर इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ अदर थिंग्स आई बिलीव, लेकिन दिस वन थिंग इसका एक खास टेस्ट होता है. लाइक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट, and to be honest with you, haven't read too much on this also. I didn't get the opportunity yesterday to do that, but I wish I had done some more research on it. But there is also the thing कि अगर late pregnancy हो तो शायद बच्चा जो है वो special needs का पैदा हो जाए. My cousin has a Down syndrome child. She had this, and this is her first child. She had a baby at the age of 20. So, again, I think before we pass, these misconceptions around, because, we hear it from somewhere and then we spread it around, ki, haan, ji, is tarah, and this is how rumors spread, this is how misconceptions are born. So I think, we should be at least aware of, agar कोई चीज़ जो है ना एग्जैक्टली पता ना हो तो आई थिंक खामोशी इख्तियार करना जो है वो बेहतर होती है रादर देन स्प्रेडिंग रॉन्ग थिंग्स, बिकॉज दैट्स हाउ दे गेन स्ट्रेंथ एंड बिकम पॉपुलर. एंड विल टॉक मोर अबाउट दिस व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक. बट बिफोर गोइंग ऑन ब्रेक, लेट मी टेल यू, रमज़ान का महीना है जी. आप अगर इफ़ यू लुकिंग फॉर इस्लामिक बुक्स एंड गिफ्ट्स, हिजाब हैं, अबाए हैं, तस्बीह, अंगूठियाँ, या फिर कुरान, डिजिटल कुरान हैं, फ्रेम्स हैं, अजान क्लॉक्स हैं, बुक्स फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, एंड CDs, DVDs, ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश एंड उर्दू में कुरान भी आपको मिल जाएंगे. यूनिक इस्लामिक गिफ्ट्स, ऑल ऑफ दोज अवेलेबल एट तलहा बुक्स एंड गिफ्ट्स. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल कर सकते हैं आरिफुद्दीन साहब को एट 469-877 9898 469-877-9898 and located है in Richardson near the intersection of North Star and Renner Road. And I think we have a caller. Let's take them on the air and then we'll go to commercial break. 972-501-9390 हमारे studio का number. I think we are probably getting a call from out of state. Let me see if I can take this call here. ऐसा करते हैं, छोटी सी commercial break लेते हैं while we try and take this caller on the air. Stay with us. Most children don't like going to the doctor. They just don't like shots. Copel Pediatrics is the only office in the area to provide no needle vaccines through PharmaJet. Dr. Schlichtermeyer has been caring for children in the area for over 18 years. She provides well childcare, sick childcare, and excellent care for children with complex health problems, including asthma, heart disease, immune deficiencies, and children with ADHD, developmental delays, and autism. You can make appointments online, view your child's chart and labs on their portal. Visit them today at Copel Pediatric, where kids are treated like kids. Call them at 972-393-8687 or visit them at www.copelpedi.com. रेडियो आजाद की पूरी टीम और कम्युनिटी की तरफ से डेरा ग्रिल कबाब हाउस को अपनी दूसरी लोकेशन बहुत बहुत मुबारक हो. अब कैरलटन के लोग भी डेरा ग्रिल का लजीज बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हैं. उनकी नई लोकेशन है एट द इंटरसेक्शन ऑफ 35 एंड फ्रैंकफर्ट इन कैरलटन. फोन नंबर है 972-242-2800. दैट्स 972-242-2800. जाइएगा जरूर. डेरा ग्रिल कबाब हाउस एंड ग्रिल, नाउ इन कैरलटन. No insurance and need your car repaired? No worries. For all your auto parts needs and bodywork like denting and painting, remember Ace Auto Recycler. They offer very economical rates on used cars. Ace Auto Recycler is located in Fort Worth on 5728 Elliott Reader Road. For more information, call 817-222-9999.
welcome back, ladies and gentlemen, listening to Radio Azad, 11:10 a.m. Voice of the People, 9725019390 हमारे स्टूडियो का नंबर. And this brings us to the last segment of the show, जिसके बाद आएंगी आयशा जी with Stitch Cup in Coffee Mornings from 10 to 11. Stay tuned for that. And we have a caller from out of state ही नहीं, out of country, बहुत दूर से हमारी सिस्टर कॉल कर रही हैं from Kuwait. Let's take her on the air and share her experience of bringing up a special needs child. Assalamu alaikum Azra. Assalamu alaikum. क्या हाल चाल है? Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah. रमजान कैसे जा रहे हैं? Alhamdulillah, very good. Excellent. Missing you, definitely. Of course, absolutely. And same here. Azra, मुझे ये बताओ, we were talking about since morning about special needs children, and I mentioned specifically that of course my sister has a very very special child, Usman, नाम है उनका. And tell us a little bit about your experience, Azra. I know you had more challenges than the just any other special needs child, because your child had something else also, मतलब उनको एक एक और बीमारी भी हो गई थी unfortunately. Now tell us about your experience first of all. ये कैसा रहा? Well, when he was born, it's like my world came crashing down, and I would say the first step to dealing with a special needs child is to accept the fact that yes, you have a child with special needs, not to be in denial. Because when he was born, I remember very specifically seeing him and going to my husband and telling him, I think he has Down syndrome, and he was like, are you mad? How can you think of something like that about your own child? And I just didn't say anything after that. But then even the doctor said he had the typical, the facial the characteristics, features of the Down syndrome child: the flat nose, the short neck, the small ears, the upward slanting eyes, the typical, the crease in the palm. So then the doctor said, yes, we need to do a genetic test, because we do suspect that he is. A lot of them told me, no, maybe he's not, because even Filipino kids look like this. Well, and I'm thinking, well, wow, my kid is nowhere Filipino. But yes, I do feel very guilty to date about the way I felt when he was born. And we did a genetic test. He was born 3 weeks later. They confirmed that yes, he had trisomy 21, which is genetic, which means the 21st gene is triplicated, and this occurs in 1 of 800, I think, 800 births. And I'm thinking, why me? All those things that you think. It was very hard for me to accept it. I wished this. Everything. I feel I don't want to go there anymore, because I do feel very guilty. But yes, after that, many Down syndrome kids have the heart defects, and Alhamdulillah, Usman did not have that. When he was 2 months, we did the echo test for him, and he did not have anything. And the doctor told me, they said, you have no idea how lucky you are, because 50% of these kids are born with a heart disease. So Alhamdulillah, he didn't have that. But then I knew what to expect. I read a lot, and I knew that leukemia was one of the things, childhood leukemia was one of the things that Down syndrome kids have. And when he was 4 years old, right after he celebrated his 4th birthday, and he had this petechiae, it's called petechiae, where the blood leaks into the skin. And when the doctor told me we're going to do a bone marrow test to just see what it is, I immediately knew this was leukemia. And well, alhamdulillah, he's 3.5 years. He went through chemotherapy, and he's now, alhamdulillah, leukemia survivor. 1 year he's off chemotherapy and in remission, alhamdulillah. And well, this was the health part of it. But other than that, dealing with him, bringing him up, you know what, I don't know if there are any tips or that parents can give you, that this is how you deal, because it's a child to child thing, and it is
it also depends on what kind of health issues he has. There are kids with visual impairments, ear infections, very common thing. Obesity, hypothyroidism. Unfortunately, Usman he also has the hypothyroidism, and since he was 2 years old, and he's on medication. Alhamdulillah, the doctors say that he's 9. He'll be 9, mashallah, next week. Actually, this week, and he's on medication, and they say you can compare him to his height and weight to a regular 9-year-old child, to a normal 9-year-old child. So alhamdulillah for that. Obesity is something that I have controlled because I knew these children were going to be obese. We kept him on a very strict schedule of food. And he's been okay. His weight is, mashallah, perfect. And I see other children who are obese, and it really hurts because they have other issues. So weight is not something that you want to deal with. But yes, I would say it's very important to stimulate them, encourage them, educate them from the time they're young. There are a lot of programs with for special needs children. Early intervention is definitely one of them. Unfortunately, in Kuwait, we didn't find any early intervention program. They were all in Arabic. So for my child did not speak Arabic. He didn't understand Arabic. But then with the help of a lot of friends, alhamdulillah, and help from the community, I was able to get a physical therapist for him, an occupational therapist, a speech therapist, and he was doing fine. I don't know if these are milestones. Every child has a different milestone. He gets to it at certain. There's nothing like, okay, when he's 4 he's going to start talking. My son didn't start walking until he was 2, and he still doesn't talk. Of course, he was able to say Amma and Baba, and he recognizes his siblings, but there's no milestone as such where you can say, well, he's going to be potty trained when he's 7 years old, or nothing of that sort. Every child is going to take his time in his own way. Now that he is he was, I had, and what happens is when you have a child with Down syndrome or any other special needs problem, you always look to other parents, like, what was your experience? How did you? And I had just one person that I looked up to, Jamshed Baji, and she had a Down syndrome daughter. So I would ask her, when did Sara get potty trained? And she would say, maybe 12. And alhamdulillah, my son was potty trained at 8. So that was the thing. Now I'm dealing with he's जब उनके दांत टूटते हैं children, बच्चों के, so I don't know how to deal with it. I would just say, you take it as it comes. You need to understand what your child wants. You need to, he's not able to communicate, so it is very difficult. So I'm really not. If people are looking for me to ask what kind of help I can be, I don't think I can be of any benefit, because every child has his own learning and learning milestone. हाँ, नहीं, सही बात है. नहीं, every special needs child is of course different. Every family की जो experiences हैं वो unique होते हैं. But there are some common concerns that link parents of challenged kids. तो वो हम आपसे मतलब जो है ना वो एक पूछना चाह रहे थे. Like you said, कि you look towards other parents, और अगर उसके बच्चे को 12 साल में potty train हुआ तो आपका 8 साल में हो गया. That is a milestone for you. That is, and you just count your blessings and thank Allah for every little thing that he didn't. I mean, हालांकि बच्चे को leukemia भी हो गया था. He's a sufferer of that. Alhamdulillah, a survivor of that. Alhamdulillah. But for me, I would only tell other parents not to lose heart, because it is now we have another cousin who has also Abir and Rehan. Right. They have a Down syndrome child, and she calls me for everything. He would call me. Rehan he always asks me. My daughter is still not walking. She's 2 years old. Is that normal? And I said yes, it's fine. And even though my son was walking when he was 21 months, now she's 24 and she's still not walking. And I said it's okay. So yes, we do look at each other. This is how you learn from each other. And well, yes, that's what they say, social development. I would say, alhamdulillah, my son has had the advantage of having so many siblings now and cousins, and he has learned with every peer learning is what is very important. Most of the children that I have seen in Kuwait is the problem is
after they have a Down syndrome child, they just don't have any more children, and they just stop. And I would say, well, not that I planned it or I wanted it, but this is from Allah, alhamdulillah. And with every child that I've had, after Usman, I've had 3 children. So the last 2 that I've had, he has learnt more with every child, speaking especially. He has learnt very much with every child that I had. Peer learning that's what they say, it's the most effective. And Azra, mashallah, commendable for you. Also, one thing I would say is, with having 5 children, of course, I know you dedicate much more time to Usman than to any other child. He requires more time. लेकिन आपने ऐसे कलेजे से लगा के और उसको इतना मतलब रखा है कि and one thing I would like to tell the parents of special needs children कि आपके जिस्म का हिस्सा है, आप उसको निकाल के फेंक नहीं सकते और ये नहीं कह सकते कि जाओ ये कोई और ख्याल रखे, इसका कोई और ध्यान रखो. So I find it so, because and we see that so much, and especially in Kuwait, कि मेडों के ऊपर जो है ना वो बच्चे फेंक के चले जाते हैं कुवैती, और they think कि ये अब हमारा जो है वो बच्चा ये कैसे, मतलब, and like you said, acceptance ही नहीं है कि ये this is not our child. Mashallah, on the other hand, I see you and so many other parents जो कि कितना ख्याल जो है ना वो sacrifices तो आप लोगों को और ज्यादा देने पड़ते हैं because of having a special needs children. I really want to commend you and all the parents that have these challenged children as well. Alhamdulillah. There's just one last thing I wanted to share with all the parents of special needs kids. This is what Usman's speech therapist told me, and I just thought it was very beautiful. He said कि when a cocoon में से जब butterfly निकलती है, and it's struggling to get out of that cocoon. तो अगर आप उसको, if you help it, and if you आप उसके पर मतलब काट दें या वो करें, तो it's very easy. But then the butterfly is not going to be able to fly for the rest of his life. So you have to let the child struggle and do his part, and you have to watch him struggle, and you have to be very patient and let the butterfly come out of his own cocoon. And that is something that I did not do when as a child, and especially after he got his leukemia, I had all kinds of negative thoughts. So मैंने तो उसको और ही कलेजे से अपने लगा के रख लिया. I didn't send him to school. I didn't work on him at all, and I feel he's far behind now than a lot of other kids who are the same age. But alhamdulillah for everything. So but at least you have accepted it, and now you want to make it better, and that is the first step, Azra. Yes. And नहीं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने जो है वो आके हमारे listeners के साथ अपना experience share किया. Lots and lots of love to Usman. We'll do something very special for his birthday. I know that's coming up in 3 days. Inshallah. Yes. ठीक है. Inshallah. All right. Thank you. Thank you. Walaikum assalam. And that was my sister, all the way from Kuwait. Very, very special baby. Unfortunately, we are out of time. I don't know if I'll real quick. We will take a couple of callers and then we'll wrap it up for the day. Ji, good morning. जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. एक सेकंड, आवाज आ रही है. जी सफिया जी, कैसी हैं? ठीक है. आप कौन है? मैं जो है आयशा बोल रही हूँ. बताइए, कॉफी मॉर्निंग शुरू हो गया, फरमाइए. बस मुझे ये बोलना, एक तो ये पूछना था कि व्हेन योर सिस्टर, थोड़े से फैक्ट्स भी आप बता दें कि आपकी बहन की एज क्या थी व्हेन शी हैड दैट बेबी, और बहन नहीं थी ना आपकी? जी जी, उरूज बात कर रही हूँ. दूसरा ये कि उन्होंने क्या वो एक ट्रिपल स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है, क्या वो करवाया था? अनफॉर्चुनेटली ये सारे जो हैं वो जवाब वही आपको दे सकती हैं. नाउ शी इज प्रॉब्ली लिसनिंग, बट आई डोंट थिंक विल हैव मोर टाइम टू गेट हर बैक ऑन द एयर एंड आस्क दीज क्वेश्चंस, सोफिया जी. बट आई अंडरस्टैंड, यस, देयर इज अ स्पेशल टेस्ट. व्हाट इज इट कॉल्ड अगेन? It's called triple screening, और वो बहुत अर्ली एज पे होता है, 3 months पे. तो उसमें वो डॉक्टर्स आपको बता देते हैं severity and everything, और then I don't know Islamically और वैसे ethically, but then parents can choose. It's very early at the age, यानी कि 2-3 महीने पे ही, so they can decide if they can weigh the benefits and the pros and the cons of having that baby. Will that be ever be healthy or not? देखिए, ये टेस्ट कराने के बावजूद भी लेकिन कुछ हुए हैं ऐसे केसेस कि they've given birth to child with the Down syndrome even after having a negative on the test. वो एक्चुअली ऐसा होता है कि वो यूजुअली टेस्ट बिल्कुल ज्यादातर एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड की डेट के साथ उनको करते हैं,
और वो अगर ऊपर नीचे हो तो डेट्स का फर्क होता है, लेकिन उसके बाद एक एमनियोसिंथेसिस का टेस्ट होता है विच मोस्ट पीपल रिफ्यूज, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी लॉस का 3% चांस होता है। तो लेकिन वो इन्वेजिव होता है, उससे वो सैंपल लेते हैं डायरेक्टली और उसमें आपको डायरेक्ट DNA और वो सारी टेस्टिंग हो जाती है। लेकिन इस तरह के टेस्ट हैं, लेकिन मैंने आई नो सम पीपल जो कि after that they regretted it that they refused the amniocentesis, लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर कोई थोड़ा सा भी ट्रिपल स्क्रीनिंग में डाउट हो तो amniocentesis करवा लेना चाहिए। Okay. I believe as far as I know, मेरी जो cousin है जिनका Down syndrome बच्चा है, who had a child at the age of 20, her first born child was a Down syndrome, she had her child in Canada, और ये सारे tests as far as I know she had her tests, and she had no idea until the baby was born that her child had Down syndrome. My sister, on the other hand, had a baby in Kuwait, or I don't remember if she had this test or not. But yes, like Sophia ji said, it is important to have these tests, and of course the risks. You have to assess those risks on your own, being parents of the child. That said and done, we're almost out of time here. Reason for this show is, first of all, of course, creating awareness of situations like these can arise. Of course, parents जो कि special needs के बच्चों के साथ they bring up their special needs children. It's very, very challenging. First of all, I'd like for the parents, the community, at large, to start promoting acceptance in their family. If somebody in their family has a child like that, start accepting them, and फिर उसके बाद treat them like normal regular kids. जैसे कि एक caller ने आके कहा था, give them that normal environment. And then my sister, she said कि you let them grow, you let them have their growing pains just like your other children, and you let them blossom in their own time. Yes, and they will take an extra amount of time, but the important thing is that you let them have that time also. Of course, there's going to be it's an uncertain future, and आपकी adjusting routines भी होंगी, आपकी lots of different things that you will have to do. Parents of children with special needs require to be more flexible, more compassionate, less stubborn, and resilient also at times. So you have to, as a community, I think we should promote that and accept them and encourage them, and because they are facing a challenge in itself. Let's not make it more challenging for them by calling them names like parents of retarded children, sisters or siblings of retarded kids. And that wraps it up for me, folks. It's been a heart-wrenching show for me. Also, I hope that I was able to give out some information that was helpful and useful to all of you. लेते हैं आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे हम शाम को, yes, इस्लामिक प्रोग्राम में, and that is going to be 1 hour before इफ्तार. इजाजत दीजिए अपनी मेजबान उरूज सईद को. Take care. खुदा हाफिज.
पूरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं